afternoon everyone. So in this class we will be discussing the entire test 13, right? We will be discussing each and every question so that you know how to attempt the paper, right? पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, टाइम कहाँ पे सेव होगा, कहाँ नहीं होगा, you need to learn that. So pay attention to each and every attemptation of the question, right? So let's begin with the first one. So this is the sum of all natural numbers from 21 to 70. Sum of all natural numbers, right? So basically निकालना क्या है, 21 plus 22 plus 23 plus so on till plus 70. Right? Clearly, ये तो ऐसे है, right? अच्छा, sum of terms in AP निकालना आता है मुझे, provided मुझे number of terms पता चल जाए, number of terms. All right. अब common sense use करते हैं, time save करने के लिए. Now 21, right? So I can write this as 20 plus 1, right? 22, 20 plus 2, right? This is 20 plus 3, then 20 plus 4, so on till 20 plus 50. अब numbers चले कहाँ से? 1, 2, 3, so on till 50. How many numbers will be there? 50 numbers. तो मैं formula लगा देती हूँ, n by 2, or I can say 50 by 2 into 2. अच्छा, अब now you need to decide which formula to use. Shall we use 2 into first term plus n minus 1 into common difference? वो वाला formula use करूँ या n by 2 into first term plus last term? बात बताओ, first term भी पता तुम्हें, last term भी पता, so I'll 21 plus 70 directly use करूँगी. So this is 25 into 91. Now you can easily evaluate and this turns out to be 2275, right? This was the first method. अब एक बार second method भी discuss कर ले. अब ये है 21 plus 22 plus 23 plus so on till 70. मुझे आता है sum of first n natural numbers. Remember the formula? Sn equal to n into n plus 1 by 2. Sum of first n natural numbers. अब यहाँ पे clearly first तो नहीं है, बीच में से शुरू हो रहा है, right? तो जो missing part है 1 plus 2 plus 3 plus 20 plus, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक sum करना आता है, 1 से लेके 70 तक. Sum of first 70 natural numbers, that will be 70. n की जगह 70 replace करना, right? हाँ, but मुझे तो इतना sum चाहिए, right? ये वाला sum नहीं चाहिए, तो मैं ये वाला sum subtract कर देते हैं. ये है क्या? 1 plus 2 plus 3 so on till 20. That means sum of first 20 natural numbers. Subtract कर देते हैं sum of first 20 natural numbers. So first का हो गया 70 into 71 by 2 minus 20 into 21 by 2 and get the answer. Answer is option D. That's the correct one. So question number 2. If 10th term and 11th term of the two APs 7, 5, 3, 1 so on and 9, 12, 15, 18 so on are A and B respectively, then find the value of A plus B. अब a plus b की वैल्यू निकालनी है, राइट? अगर मुझे a पता चल जाए and b पता चल जाए, मैं ऐड कर दूंगी, राइट? अच्छा, a है क्या? 10th term of 7, 5, 3, 1. This is 10th term of this. 10th term डायरेक्टली लिखते हैं, first term plus n minus 1. इसमें n क्या है? 10. So n minus 1 that will be 9 into b. b is minus 2. This is the 10th term and this is equal to a. तो आया क्या? 7 minus 18 equal to 8. So A turns out to be minus 11, right? And B क्या है? 11th term of this AP, right? 11th term. So first term plus 10 into D. D is 3. So this turns out to be 9 plus 30, that is 39. This is B. So B turns out to be 39. मुझे क्या निकालना था? A plus B. So 39 minus 11, that is 28. Option D is the correct one. Question number 3. The term of AP 7, 13, 19 so on, which is 120 more than its
29 टर्म, मतलब मुझे इस एपी की ऐसी टर्म फाइंड आउट करनी है विच इज 120 मोर देन इट्स 29 टर्म, राइट। अच्छा 29 टर्म, इसको ऐसे लिख लेते हैं 329, 120 मोर तो प्लस 120, मुझे ऐसी टर्म ढूंढनी है जो इसके इक्वल हो, एज दिस इज इक्वल टू 3n, राइट। अब 329 डायरेक्टली लिखे 7 प्लस 28 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 6 प्लस 120 इक्वल टू, अब nth टर्म 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, राइट। अच्छा 7 7 कैंसिल, अब सिंप्लीफाई और भी हो सकता है, 6 का फैक्टर 6 का फैक्टर 6 का फैक्टर, कैंसिल द कॉमन फैक्टर, 6 डिवाइड किया तो ये हो गया 28 प्लस 20 equal to n minus 1. So this is 48 plus 1, that is n equal to 49. So that means option A is the, so question 4, the 19th term from the end of AP is, अब 19 टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, अब ये एंड से फर्स्ट टर्म, फिर होगी सेकंड, फिर थर्ड, और मुझे क्या निकालनी है 19th टर्म, 19th टर्म यहाँ से, मैं एपी को ऐसे लिख लेती हूँ 81, अच्छा इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट होगा, इससे पहले वाली टर्म विल बी 77, so this is 81 77 so on till 9 and 9, right। अब मुझे 19 टर्म चाहिए, यहाँ से 19 टर्म निकालना इजी है, 19 टर्म एज इन फर्स्ट टर्म 81 प्लस 19 minus 1 18 into common difference, that is minus 4. This is 81 minus 72, that is equal to 9. So option A is the correct one. Question number 5. The first negative term of the AP 171, 163, 155, 147 and so on. First negative term बतानी है, कौन सी होगी? Obviously, clearly AP decreasing है, negative term तो आनी है, right? Negative term चाहिए, ठीक है? So मैं मान लेती हूँ कि nth term negative term है, right? That means Cn is negative. Negative as in less than 0, right? अब Tn लिखनी है, so 71, 171 plus n minus 1 into D. Common difference क्या है? Minus 8. Less than 0, right? अब सबसे पहले तो 171 को ट्रांसपोज करते हैं, तो दिस इज माइनस 171, अब माइनस 8 है, दैट मीन्स मुझे माइनस 8 से डिवाइड करना है, तो n माइनस 1 यहाँ पे 171/8, बट मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स ग्रेटर देन दिस। अच्छा ये 171/8 it will be approximately equal to 21.6, right? अच्छा 1 को ट्रांसपोज कर देते हैं, so n is greater than 22.6, right? एक बार नंबर लाइन पे देखें ना, सपोज ये मेरा है 22, ये है 23, 24 and so on, और यहाँ पे 0 था and so on, right? Now 22.6 से greater, so that means n कुछ इस साइड पे होगा, right? That means n 23 हो सकता है, n 24 हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, right? And so on. अब मुझे क्या निकालना है? The first negative term of the AP. अब एक बात बताओ, यहाँ पे 23rd term आएगी, then 24th term, then 25th and so on. आगे तो नेगेटिव ही है, मुझे चाहिए फर्स्ट नेगेटिव, इनमें से फर्स्ट नेगेटिव कौन सी हो? फर्स्ट वाली, that is 23rd. So that means option B is the correct one. Question number 6. So 7th term of an AP is this and 15th term is this. अब मुझे क्या निकालनी है? 27th term, right? So 7th term मैं लिख लेती हूँ, that is A plus 16. ये किसके इक्वल है? Minus 39/12, right? 15th term as in A plus 14D
ये किसके इक्वल है -103/12, राइट। मुझे निकालना क्या है 27th टर्म एज इन a + 26d। तो अगर मुझे a पता चल जाए d पता चल जाए मैं वैल्यूज पुट करूंगी एंड आई विल गेट द आंसर। नाउ तुम्हारे पास 2 इक्वेशंस है, 2 अननोन्स है, क्या करूं सब्ट्रैक्ट कर दो। सबसे पहले तो d की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, तो d टर्न्स आउट टू बी 2/3। d आ गया, अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, छोटा नंबर है, तुम्हारी मर्जी, तुमने ज्यादा कैलकुलेशन करनी करो। तुम्हारे पास d आ जाएगा, a आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो एंड गेट द आंसर। आंसर इज ऑप्शन C। ऑलराइट, so question number 7, which of the following sequences are AP and then choose the correct option? First you need to ascertain which of the following are AP, right? first check करते हैं, डिफरेंस चेक करना है, तो ये डिफरेंस हो गया 2, राइट। ये 16/2 - 3 डेफिनेटली 2 नहीं होगा, दैट मींस नॉट इन AP, राइट। बस और कितना वैल्यूएट करोगे वहां पे कंक्लूड हो गया नॉट इन AP। नेक्स्ट डिफरेंस चेक करें, 3.3, ठीक है। डिफरेंस चेक करो, ये भी 3.3 आ रहा है, ऑलराइट। डिफरेंस चेक करना 3.3, सारे डिफरेंसेस सेम, सो दैट मींस दिस इज एन AP। नेक्स्ट वन, so √6 √24, अच्छा पहले तो इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। so √6 तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, then 24 is 4 into 6, so this is 2 √6, right, and 54 is 9 into 6, so that means this is 3 √6, then 90 is 9 into 10, so this is 3 √10, right। अब डिफरेंसेस चेक करें, ये तो √6 है, ऑलराइट, √6, ये √6 नहीं है, so that means this is not in AP, right। अब लास्ट चेक करते हैं, इसका डिफरेंस चेक करो, ये है a² + 1 - a - 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a² + 1 - 2a और यहाँ से माइनस होना है, so that means difference is 2a, इतना तो दिखना चाहिए अब। एंड ये है a + 1 होल स्क्वायर - a² + 1, a² + 1 तो कैंसिल आउट हो बचेगा क्या 2a। Oh, difference is same. That means this is an AP. So 2 and 4 they are the AP. अब ऑप्शन चेक करें, 1 and 3. No, it's absolutely wrong. 2 and 4. Yes, option B is the correct one. Question number 8. Given an AP A1, A2, A3 and so on, AN is 7n - 4. Then the value of S10 is. अब S10 की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब S10 के लिए n तो पता है मुझे, बट ना मुझे फर्स्ट पता है और ना मुझे कॉमन डिफरेंस पता है, बट एन तो गिवन है, राइट। फर्स्ट टर्म तो मैं डायरेक्टली एन से निकाल देती हूँ, A1, n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करो, टर्न्स आउट टू बी 7 into 1, that is 7 - 4, ठीक। देन कॉमन डिफरेंस भी चाहिए होगा, हाँ A2 निकाल देती हूँ, A2, अब n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करो, तो दिस इज 7 into 2 - 4, that is 10। तो एक बात बताओ, कॉमन डिफरेंस होगा क्या, A2 - A1, so that is 7। अब S10 निकालना है ना, so that means 10/2, that is 5 into 2 into 3 first term plus n - 1, that is 9 into common difference, that is 7, right। So this is 5 into 6 plus 63 and this is 5 into 69 and this will turn out to be 345. So that means option D is the correct. So question number 9. Out of first 930 natural numbers, the total number of natural numbers which leaves the remainder 3 when divided by 4 is, number निकालना है और उसमें बोलो out of first 930 natural numbers which leaves the remainder 3, चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग आउट सच नंबर। अब फर्स्ट नंबर लेते हैं 1। अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 4 into 0, 0, रिमाइंडर इज 1। मुझे क्या दिया था रिमाइंडर 3, ऑलराइट, ये तो नहीं है। अच्छा अब 2 चेक करें, रिमाइंडर विल टर्न आउट टू बी 2। अच्छा अब 3 चेक करते हैं, तो रिमाइंडर इन दिस केस टर्न्स आउट टू बी 3, एक नंबर मिल गया, ठीक है।
अच्छा 3 एक नंबर मिल गया, तो मुझे बता सकते हो नेक्स्ट नंबर कहाँ मिलेगा? डिविजिबिलिटी बाय 4 है, नेक्स्ट नंबर मिलेगा 7 पे, एंड देन नेक्स्ट 11 एंड सो ऑन, राइट। अब ये जाना कहाँ तक है ये देखना पड़ेगा। उसने बोला आउट ऑफ फर्स्ट 930 नेचुरल नंबर। अब 930 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, चेक करना रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आता है, मुझे चाहिए था 3, ये तो नहीं है। देन अब मैं 929 को डिवाइड करती हूँ, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 1, राइट। अब 928 को डिवाइड करती हूँ 4 से, रिमाइंडर विल टर्न आउट टू बी 0, राइट। अब मैं करती हूँ 927 को डिवाइड, चेक करना रिमाइंडर क्या आ रहा है, चेक करो, दैट इज 3, so that means 927 तक जाएगी एपी। अच्छा ये तो पता चल गया था ना एपी होगी ये, कॉमन डिफरेंस स्कोर, राइट। मुझे निकालना है द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये नंबर्स है कितने ये निकालना, राइट। एपी है, मैं मान लेती हूँ nth टर्म है, n की वैल्यू निकाल लेती हूँ, राइट। अब nth टर्म 927, अब a plus n minus 1 into d, a is 3 plus n minus 1 into d, d is 4 equal to 927, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो। In fact, option C is the correct one. Now, question number 10. Given an AP, A plus B, A plus 2D, and so on, if S6 equal to 7 into S12 minus S6, then the value of this is, right? ये वैल्यू है कि A27 as in A plus 26D divided by A plus 12D, right? इसकी वैल्यू निकालना। अब मुझे रिलेशन है ये गिवन, राइट। पहले तो हाँ वैल्यूज ऑब्वियसली हमें डालनी पड़ेंगी S6 एंड S12, पर डालने से पहले एक बात बताओ, S6 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, लाइक तो कंबाइन तो कर लो पहले, तो -7 S6 को यहाँ पे ट्रांसपोज करो, दिस विल बिकम 8 7 S6 इक्वल टू 7 S12, राइट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 8 इंटू S6 एज इन 6/2 इंटू 2a plus 5d, राइट। अब वो 6 minus 1 स्टेप मत लिखा करो, ऑब्जेक्टिव पेपर है, इतना तो लिखो तुम डायरेक्टली। दिस इज इक्वल टू 7 इंटू S12, so that is 12/2 इंटू 2a plus 11d, राइट। अब सिंप्लीफाई करो इसको जरा, सिंप्लीफाई करने से पहले कॉमन टर्म्स जरूर कैंसिल आउट जरूर कर देना, राइट। एंड और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से। इनफैक्ट यहाँ से a इन टर्म्स ऑफ d, इनफैक्ट d इन टर्म्स ऑफ a आ जाएगा, रिलेशनशिप मिलेगा। तो a टर्न्स आउट टू बी -19/2d, यहाँ से एक रिलेशन मिल जाता है, राइट। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ, a एंड d डायरेक्टली तो नहीं पता चलेंगे, बट a मुझे पता चल गया -19 to 19/2d है, राइट। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना इन टर्म्स ऑफ d, होगा क्या ये -19/2d plus 26d होल डिवाइड बाय -19/2d plus 12d। इससे बेनिफिट क्या होगा, d कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारे पास रेशियो आ जाएगी। This is nothing but -19 plus 52, that is 33, whole divided by -19 plus 24, that is 5. एक्स्ट्रा स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है ये, राइट। So that means option D is the. So question number 11. If CK denotes the kth term of an AP, and if CM is the m plus n is equal to m plus n, and Cn is equal to m minus n, and m is not equal to n, then the common difference of AP is, right? Basically mth term किसके इक्वल है, m plus n, mth term as in a plus m minus 1 into d, this is the mth term, this is equal to m plus n, right? This is nth term, so as in a plus n minus 1 into d, this is equal to m minus n, right? मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस एज इन डी की वैल्यू। तो एक बात बताओ, ए तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, राइट। ये तो कैंसिल, यहाँ पे क्या बनेगा, डी तो कॉमन आएगा ही,
और यहाँ पे -1 + 1 कैंसिल, so that means n - n, right? अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, m and n तो कैंसिल हो जाएगा, n + n, that is 2n. So D is equal to 2n by m minus n. That means option D is the correct one. So question number 12. The sum of last 10 terms of the AP is. अब sum किसका निकालना है? Last 10 terms. ये first term, second term, third term. मुझे निकालना है sum of last 10 terms, right? अब सबसे पहले तो टर्म लिखी तो सही, ये -40, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट? यहाँ पे 3 ऐड होगा, so that means this will be -37, राइट? तो मैं AP ऐसे लिख लेती हूँ, -40, -37 and so on, 14 and 17. अब यहाँ पे sum of 10 terms निकालना है, निकाल लेते हैं. 10/2 into 2 into first term, so 2 into -40 plus n minus 1, so that is D, into common difference is 3. That's it. Evaluate it and you will get the answer. So question number 13. In a potato race, bucket is placed at the starting point, right, which is 10 meter from first potato, 10 meter away from first potato. And other potatoes are placed 6 meter apart in a straight line, and other potatoes are placed 6 meter apart. There are 13 potatoes in a line. Total कितने potatoes हैं? 13. Right. Each competitor starts from the bucket. Suppose वो यहाँ से चला है, right? Picks up the nearest potato, and runs back with it and drops it in the bucket. So the girl, the competitor, starts from here. She picks up the potato and runs back with it, right? And runs back to pick up the next potato. अब next potato को pick up करने के लिए she starts again. यहाँ तक पहुंची, then pick up किया, and then she comes back again, right? And she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket, right? सारे potatoes she has to pick up. Then the total distance the competitor has to run is total distance. ठीक है, तो मैं निकाल लेती हूँ कि फर्स्ट के लिए कितना था, फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, सेकंड के लिए कितना डिस्टेंस, थर्ड के लिए एंड सो ऑन, राइट? अब फर्स्ट पोटैटो को पिकअप करने के लिए, राइट, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, ट्रैवल किया, रन किया, कितने मीटर? 10 मीटर, राइट? हाँ, अच्छा वापस भी तो गई, so that means 2 into 10, राइट? अब नेक्स्ट पोटैटो की बात करते हैं. तो नेक्स्ट पोटैटो है यहाँ, कितना दूर है? 10 plus 6, that is 16 मीटर अवे, 16 मीटर. अच्छा वापस भी जाना है उसको, हाँ, तो ये हो गया 2 into 16. ऑलराइट, राइट? अब थर्ड पोटैटो की बात करते हैं. दैट मीन्स ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो ये 10 है, ये 6 है, ये 6 है, इतना कितना हुआ? 22. अच्छा 22 मीटर चले, run किया इस साइड, and then she has to go back as well, so that is 2 into 22 and so on, right? ये ऐड ही करना है मुझे, बिकॉज टोटल डिस्टेंस निकालना है, अब तो ऐड है. सबसे पहले तो 2 सब में आ रहा है, राइट? 2 कॉमन, राइट? यहाँ पे था 10 plus 16 plus 22 plus so on, right? राइट, 10 16 22, ये तो एपी में है, ग्रेट. एपी का सम करना होता है. अब मुझे पता चलनी चाहिए कि ये टर्म्स कितनी होंगी. तो पोटैटोस कितने थे? हाँ, 13 पोटैटोस, so that means टर्म्स कितनी होंगी? 13 टर्म्स. तो सम निकाल लेते हैं. तो 2 into 13/2 into 2 into 10 plus 12 into common difference, that is 6. Right? Just evaluate that and get the answer. Answer is option A. Alright, so question number 14. The sum of two middle terms of the AP. अब sum of two middle terms निकालना है, right? अब now this is a 10-second question. तो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि सम क्या होगा. 9-year-old Gauss ने ही ascertained this pattern. तुम्हें भी इनफैक्ट ये पैटर्न बता चुकी हूँ मैं. एक बात बताओ, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम 191, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट का सम 191,
थर्ड एंड थर्ड लास्ट 191. एक बात बताओ, सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स होगा 191. आंसर इज ऑप्शन सी. 10 सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे सेव करना था तुम्हें टाइम. Alright, so question number 15. A farmer buys a tractor for 1,50,000. He pays rupees 40,000 in cash and agrees to pay the balance in annual installment of 5,000 plus 12% interest on the unpaid amount. Right? The total amount that the farmer paid for the tractor is. Now, 1,50,000 का ट्रैक्टर था, he paid 40,000 in cash, right? So that means बचा कितना होगा 1,10,000, right? He agrees to pay this amount in installments of 5,000. अब एक बात बताओ, 5,000 के कितनी इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ेंगी उसको? निकाल लेते हैं. 1,10,000 को डिवाइड किसके साथ करना है? 5,000 के साथ. पता ना आंसर क्या आएगा? Answer turns out to be 22. So that means he has to give 22 installments, right? अब मैं देख लेती हूँ in each installment how much he has to pay, and then I'll add up, right? A first installment 5,000 plus he pays 12% interest on the unpaid amount. अब 12% interest on unpaid amount. अब unpaid amount है कितना? 1,10,000, right? So 1,10,000 into 1, क्योंकि एक साल के लिए दे रहा है, into 1 into रेट कितना है 12 डिवाइड बाय 100, राइट? ये हो गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. अब सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करें, 5,000 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट. अब पहले अनपेड अमाउंट था 1,10,000, अब 5,000 वो दे चुका था, तो कितना बचा होगा? 1,05,000 into 1 into 12 and divide by 100, right? अब first installment, second installment, so on. अब last installment क्या होगा? 5,000 plus. अब last में remaining amount क्या होगा? Last installment में 5,000 rupees. 5,000 into 1 into 12 by 100. बस ये ऐड ही तो करना है, तो ऐड करना इज वेरी सिंपल. क्यों? एक बात बताओ, 5,000 5,000 5,000 कितने बार कैलकुलेट करना है? 5,000 into 22, 5,000 into 22, राइट? प्लस अगर मैं ये ऐड कर लूं ये वाली टर्म, माय प्रॉब्लम इज डन. एक बात बताओ, 12 by 100 12 by 100 12 by 100 तो कॉमन ही आ रहा है. 12 by 100 कॉमन इनटू ये क्या बचा? 1,10,000 plus 1,05,000 plus so on till plus 5,000. तो डेफिनेटली एपी बनेगी. एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी एपी में? 1 2 3 4 so on till 22 टर्म्स. तो ये हो गया 12 by 100 into 22 by 2 into, अब हम करना था ना, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं? फर्स्ट टर्म भी पता है, सेकंड टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है. So that means this plus this. So 1,15,000, right? ये निकाल लो और ऐड क्या करना है? This thing. Add this and this, and your answer will be option C. इसमें एक चीज ऐड करना भूल गए, जो तुम लोग भी भूलते हो. क्या? टोटल अमाउंट दैट द फार्मर पेड. एक बात बताओ, ये 40,000 को ऐड करना मत भूल जाना. ये इनिशियली इसमें कैश में दिया था, यू हैव टू इंक्लूड दैट. तो ऐड किसको करना है? 40,000 प्लस दिस प्लस दिस. बहुत से बच्चे इसको भूल जाते हैं, so please keep that in mind. So the next one, so question number 60. From now on it's integer type, right? Integer type में तुम आंसर कैसे करते हो? From numbers 00 to 99. Right? So the 16th one is write the value of n for which the nth term of the two APs are equal. nth term are equal, right? n की वैल्यू निकाल लें. अच्छा, इस AP की nth term लिख लो. 17 plus n minus 1 into common difference is d.
and that is 9, right? अब इसके ना टर्म में लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म 95 प्लस n minus 1, कॉमन डिफरेंस इज 3, राइट? एन टर्म इक्वल होनी चाहिए, मुझे n की वैल्यू नहीं आ जाएगी डायरेक्टली, सॉल्व करो and n will turn out to be 14. So you will write the answer as, alright, so question number 17. Write the sum of first 7 terms in AP if the fourth term is given to be 9. 7 terms in AP, right? So मैं ले लेती हूँ a minus 3d, a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d, and a plus 3d. 7 terms in AP, right? He says that the fourth term is 9. Fourth term, that is a is 9. Sum निकालना है, इनको ऐड करना, अभी minus 3d, 3d कैंसिल आउट होने वाला है. इनफैक्ट d वाली टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाएंगे. अच्छा a कितनी बार आया? 7 times. 7 into a और 7 into 9. That is 63. Then second question again. Question number 18. If a 21, b, c and minus 21 are in AP, then write the value of a plus b plus c. Right? अगर मुझे पता चल जाए a क्या है या b क्या है या c क्या है, I can add them up. Right? These numbers are in AP. Right? So a तो ठीक है. अब ये 21 second term है, so that means ये क्या होगी? a plus c. Right? This will be a plus 2d. इसको भी लिख लेते हैं a. Right? This will be a plus 3d and minus 21 will be a plus 4d. Right? एक बात बताओ, a plus d that is 21 and a plus 4d that is minus 21. यहाँ से तो d की वैल्यू मिल रही है, इनफैक्ट a की वैल्यू भी मिल जाएगी. राइट? मुझे क्या निकालना है? a plus b plus c as in a plus a plus 2d plus a plus 3d. So basically I need to find out 3a plus 5d. अब यहाँ से a पता है, तो मैं d पता है, पहले सब्स्टिट्यूट करो and get the answer. The answer turns out to be 35. Alright, so 19th question. Write the value of x such that 2 plus 7 plus 12 plus 17 so on plus x equal to 156. Right? x की वैल्यू निकालनी है. और यहाँ है 2 plus 7 plus 12 plus 17. 2, 7, 12, 17. ये तो AP में है. That means कि हमने क्या किया हुआ है? AP का सम किया हुआ है. Right? x यहाँ पर है. अब मुझे पता चल रहा है कि x कौन सी टर्म है AP की. मैं x की वैल्यू निकाल लूंगी. Right? पहले टर्म तो पता चले कितनी टर्म्स हैं. तो मैं मान लेती हूँ that these are n in number. So n terms. Sum of n terms is 156, right? तो फॉर्मूला लगाते हैं. So n by 2 into 2 into 2, so that is plus n minus 1 into, that is common difference is 5. This is equal to 156, right? इसे simplify करते हैं and our equation becomes 5n square minus n minus 312. Let me check. Yeah, equal to 0, right? ये क्वाड्रेटिक बन गया. हाँ, क्वाड्रेटिक में या तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से चल सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. माय पर्सनल चॉइस इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. अब तुम बोलोगे मैम स्प्लिट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. एक बार देख लेते हैं. ऑल आई हैव टू डू इज थिंक ऑफ टू नंबर्स whose sum is -1 and whose product is -312 into 5. That is -1560. राइट? अब तुम बोलोगे मैम कैसे सोचे. तो एक बात बताओ, यहाँ पे ऐड करने पे -1 है, इट्स अ टाइनी नंबर. राइट? तो जो दो नंबर्स होंगे वो होंगे तो पास पास ऑब्वियसली. अब उस नंबर सोचे कैसे? एक बार इसको देखें. -1560. ये कौन से स्क्वायर के पास है? 1600. अच्छा 1600 किसका स्क्वायर होता है? 40 का. राइट? एंड -1 एक बार ट्राई करूँ मैं. 40 and 39 ले लेती हूँ मैं. राइट? 40 into 40 1600 होता है. मुझे चाहिए ये नंबर. तो 40 into 39 करके देखती हूँ. चेक करना.
into 39 is 1560, राइट। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस है तो बढ़ेगी आगे नेगेटिव साइन, होगी मिड टर्म स्प्लिट। यहाँ से n की एक इंटेग्रल वैल्यू आती है, दैट टर्म्स आउट टू बी 8, so that means these are 8 terms। तो जो x है वो होगा क्या, the 8th term of the AP, as in T8 will be x, right? इसकी वैल्यू निकालना, तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है 2 + 7 × 5, so that is 37, x is 37, that's the answer। All right, so question number 20 is k² - 2 5k and 6k + 5 are 3 positive consecutive terms of an AP। पॉजिटिव नहीं लिखा मैंने, ठीक है। All right, so question number 20, if k² - 2 5k 6k + 5 are 3 positive consecutive terms, 3 positive consecutive terms of an AP, then write the value of k। k की वैल्यू लिखनी है, अब ये AP में है, that means T2 - T1 as in 5k minus k² - 2 equal to T3 - T2, so 6k + 5 minus 5k, right? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, we'll get the equation k² minus 4k plus 3 equal to 0, right? यहाँ से k की दो वैल्यूज आती हैं 1 and 3, right? तुम बोलोगे मैम दो आंसर आ गए, ये कैसे हुआ, हमें तो एक ही वैल्यू लिखनी होती है, जस्ट वन आंसर विच इज करेक्ट। अब एक बात बताओ, यहाँ पे उसने बोला 3 पॉजिटिव कंसेप्टिव टर्म्स हैज टू बी पॉजिटिव। अब k को जरा 1 पुट करो, अगर मैं k को यहाँ 1 पुट करती हूँ, ये क्या बन गया 1² - 2, नेगेटिव टर्म बन जाएगी, सो दैट मीन्स k = 1 रिजेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव चाहिए था मुझे, so that means the correct answer is 3, और आंसर तुम जो लिखोगे that is 0 3। All right, so question number 21, if 3 numbers are in AP whose sum is 24 and product is 440, then write the largest of them। अब 3 numbers in AP, ठीक है, a - b a + d सपोज कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, और we can use common sense। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है 440 एंड सम है 24, सच टाइनी नंबर, प्रोडक्ट 440, राइट? एक बात बताओ, यहाँ पे 11 का फैक्टर है, तो 11 तो डेफिनेटली प्रेजेंट है। अब यहाँ पे 10 का फैक्टर है, बट डेफिनेटली यहाँ 10 तो नहीं रख सकती, AP बनानी है और सम होना चाहिए 24, राइट? तो 10 नहीं रखेंगे, हाँ 5 लिख लेते हैं, 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और सम क्या चाहिए 24, दैट मीन्स हाँ बीच में क्या आएगा 8, बन तो गई तुम्हारी AP। मुझे क्या चाहिए, लार्जेस्ट इज 11। Another 10-second question। All right, so question number 22, write the sum of first 22 terms of the series, first 22 terms। All right, series को देखें, clearly directly AP नहीं है, right? बट एक बात बताओ, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 9, यहाँ पे 11, 5 9 5 7 9 11, ये तो AP में है। अच्छा यहाँ पे बचा क्या 14 9 4 -1, 14 9 4 -1 and so on। Is this an AP? Yes। Is this an AP? Yes। क्या है, मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड किया, 5 + 14 + 7 + 9 + 9 + 4, so that means कंपेयरिंग कर सकती हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ 2 APs को ऐड करने पे जो प्रोग्रेशन मिलेगी दैट विल डेफिनेटली बी एन AP, राइट? तो ऐड करने पे क्या मिला 19 प्लस यहाँ पे 16 प्लस 13 प्लस 2, राइट? बेसिकली इसका सम निकालना है। हाँ यहाँ का 22 टर्म, अब मैंने हर एक 2 टर्म से 1 टर्म बनाई है, राइट? तो इस AP में कितनी टर्म्स मानू, 11 टर्म,
Find the sum of 11 terms. 11 by 2 into 2 into 19, that is 38 plus 10 into common difference is minus 3. Solve for one, you get the answer. Answer is 44. Right. Question number 23. Write the second integral term of the AP 11.10, 14.20, 17.30 and so on. Second integral term, right? तो एक बात बताओ, ये AP है 11.10, इंटेग्रल नहीं है, फिर जाके इंटेग्रल आएगी, राइट? ये तो पहली है, मुझे पहली नहीं चाहिए. I don't need the first one. I need the second integral term, right? तो एक बात बताओ, जिस टाइप की AP है 11.10, right? 14.20, 17.30, यहाँ 10, 20, 30, नेक्स्ट में 40. इंटेग्रल के लिए क्या होना चाहिए? 0, 0, राइट? तो 10, 20, 30, 40, 0, 0 कब आएगा? काउंट कर लो. 10 टर्म में आना चाहिए, राइट? ऑब्जर्वेशन, राइट? 10 टर्म पे तुम्हें पहले इंटेग्रल टर्म मिल जाएगी, मुझे चाहिए सेकेंड. अब यहाँ पे 0, 0 आने के बाद फिर से शुरू हो जाएगा 0.10, फिर 0.20, फिर से मुझे चाहिए 0.00, राइट? ये वाले टर्म हो गए कितने? Just 10 hours. So that means this will be the 20th term. 20th term निकालो AP की. So first term is 11.10 plus 19 into common difference is 3.1. Get the answer? Answer is 70. कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, कोई मेथड नहीं लगाया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, दैट्स इट. सच एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और तुम लोग नहीं करते. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 24. 4 numbers are in AP. Their sum is 12 and the smallest number is minus 12. Then write the largest number. अब ना यहाँ गेसिंग में इशू है बिकॉज नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर minus 12, राइट? तो नेगेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे गेसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? इट्स ओके, हमें मेथड तो आता ही है. अब 4 नंबर्स इन AP और सम दे रखा है, डेफिनेटली क्या चूज करूँ? A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D, राइट? सम किसके इक्वल है? 12 के. So that means 4A is equal to 12, or I can say A is equal to 3, right? Smallest number is minus 12. मान लो कि इंक्रीजिंग AP है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर एज इन A minus 3D equal to minus 12. यहाँ से D की वैल्यू भी आ गई. मुझे क्या चाहिए? द लार्जेस्ट नंबर, मतलब A plus 3D. तुम्हें A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, पुट करो, आंसर निकालो. आंसर टर्न्स आउट टू बी 18. So question number 25. Write the maximum number of terms of the AP minus 6, minus 11 by 2. Alright, so question number 25. Write the maximum number of terms of the AP minus 6, minus 11 by 2, minus 5, so on, needed to get the sum minus 25. तो कितनी टर्म्स कंसिडर करूं so that उनको ऐड करने पे minus 25 सम मिले, राइट? मैं सपोज कर लेती हूँ कि n टर्म्स इंक्लूड करनी पड़ेंगे, राइट? तो बेसिकली Sn is equal to minus 25, right? So n by 2 into 2 into minus 6 minus 12 plus n minus 1 into d. d is 1 by 2. Now this is equal to minus 25, right? Quadratic in n मिल जाते हैं, which is easily solvable. वहाँ से n की दो वैल्यूज आती हैं, 5 and 20. अब क्वेश्चन में उसने पूछा write the maximum number of terms. That means you will consider 20. So answer is 20. Alright. So question number 26. Write the number of terms common to the two APs 3, 5, 7, 9, 11, so on, and up to 100 terms.
ये अप टू 100 टर्म्स है एंड 4, 7, 10, 13 so on up to 75 terms. Number of terms common to the two AP. अब ढूंढे, यहाँ पे 3 तो है नहीं, हाँ 7 राइट, कॉमन टर्म मिल गई। और कौन सी कॉमन टर्म है? 13 राइट, और 19। अब मुझे बतानी है राइट द नंबर ऑफ कॉमन टर्म, राइट, यही बताना है। अब ये अप टू 100 टर्म्स है, पहले मैं 100 टर्म तो निकाल लूं। 100 टर्म निकाल लोगे एपी की, वैसे तो कॉमन सेंसिटिविटी दिख जाती है, इट्स 201 राइट, और ये है अप टू 75 टर्म, तो 75 टर्म निकाल लोगे एपी की, दैट इज 226 राइट। मुझे कॉमन टर्म देखनी है, ये खत्म हो रहा है 201 पे, ये 226 पे राइट। बात बताओ, कॉमन टर्म ना टर्म्स लिखना शुरू कर दो, इससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी? यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 3 सबट्रैक्ट होगा, तो 223, फिर 223, then 217, then 214, then 211, then 208, then 205, then 202, and then 191 आ जाएगा राइट। यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे 199। एक बात बताओ, 201 से पहले वाली टर्म, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो दैट इज 191। तो लास्ट कॉमन टर्म कौन सी है? 199। लास्ट कॉमन टर्म इज 199। तुम्हें बताना है ये कितने नंबर्स हैं राइट। सपोज कर लो ये nth टर्म है और n की वैल्यू निकाल लो, n turns out to be 33। कोई मेथड नहीं लगाया, लिटरली लिख ली मैंने टर्म और आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 27। So this is an arrangement that is given to you, right? First group, second group, third group, fourth group, fifth group, and so on. He says let A be the middle term of 17th group and write the value of A minus 600, right? So basically मुझे middle term निकालनी है 17th group की, right? अब middle term निकालनी है, पहले total number of terms तो बताओ। अब 17th group में कितनी number of terms होंगी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो फर्स्ट ग्रुप में कितनी टर्म्स है? 3, नेक्स्ट में 5 एंड देन नेक्स्ट में 7 एंड सो ऑन। अब मुझे बताना है कि 17th ग्रुप में, सपोज ये मेरा 17th ग्रुप है, इसमें कितनी टर्म्स होंगी? आप बताओ, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। बेसिकली 17 टर्म्स चाहिए मुझे किस एपी की? 3, 5, 7 इसकी चाहिए मुझे 17 टर्म, निकाल लोगे। In fact, this turns out to be 35, right? 35 terms in 17th group, right? अब मुझे चाहिए the middle term। अब middle term 35 terms है, right? 35 में से 1 माइनस करती हूँ, कितना बच गया? 34। तो 17 इधर आएंगी and 17 इधर आएंगी, right? 17 terms and 17 terms, राइट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? हाँ, अब यूजुअली क्या होता है, हमें पता चल जाए अगर फर्स्ट टर्म क्या है, राइट, आई कैन गेट टू नो द मिडिल टर्म, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं देख लेती हूँ कि 16th ग्रुप तक, 16th ग्रुप कितने नंबर्स कवर अप हो चुके हैं, राइट। क्योंकि ये नंबर्स तो देखो कैसे हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये ऑड नंबर है, ये एपी बना रहे हैं। तो अगर मैं देख लूं कि 16th ग्रुप तक कितने नंबर्स कवर अप हो चुके हैं ये वाले, मैं बता दूंगी 17th ग्रुप की फर्स्ट टर्म क्या है, राइट। अब वो कैसे निकालें? अब एक बात बताओ, फर्स्ट ग्रुप में कितने नंबर्स कवर अप हो चुके हैं? 3, then 5, then 7, राइट। तो 16th ग्रुप तक कितने नंबर्स कवर अप होंगे? फर्स्ट में 3 हो गए, फिर नेक्स्ट में 5 और हो गए, फिर नेक्स्ट में 7 और हो गए, राइट, एंड सो ऑन। बेसिकली 16th ग्रुप तक कितने नंबर्स कवर अप हुए हैं, अगर मैं ऐड कर दूं मुझे पता नहीं चल जाएगा। फर्स्ट
डिफरेंट, ये ऐड कर दो, ये तो एपी है, एपी को ऐड करना नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो इसमें कितनी टर्म्स होगी? 16 टर्म्स। तो बेसिकली S16 निकालना है। This will turn out to be 288. That means 16th group तक कितनी नंबर्स कवर अप हो चुके हैं, कितनी टर्म्स कवर अप हो चुकी है? 288, राइट? ठीक है, अब तुम बोलोगे मैम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। एक बात बताओ, अगर मेरे को पता ही चल गया कि 288 नंबर्स कवर अप हो चुके हैं यहाँ तक, अब यहाँ से आगे 17 नंबर्स और कंसिडर हो जाएंगे। 17 टर्म्स है मतलब 70 नंबर्स और कंसिडर हो जाएंगे, प्लस 17, ये कितना आया? 305, राइट? मतलब मिडिल टर्म से पहले कितने नंबर्स कवर अप हो गए? 305। मिडिल टर्म कौन सी टर्म होगी? 306 टर्म, राइट? और एपी तो तुम्हें पता ही है, कौन सी एपी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11। इस एपी की कौन सी टर्म निकालनी है? 306 टर्म। निकाल लो, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। So it turns out to be 611. Basically, A turns out to be 611. मुझे क्या निकालना है? A minus 600. So that is 11. Now simple the things are when you understand the logic of it. एक बार logic समझ आ गया ना, these questions are very easy. You need to understand logic. So question number 28. Write the number of integers between 200 and 500 which are divisible by 7. Right? तो देख लेते हैं 200 and 500 के बीच में। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 200 को डिवाइड करती हूँ 7 के साथ। रिमाइंडर क्या आता है? It turns out to be 4. अब मुझे exactly divisible by 7 चाहिए, राइट? तो इस नंबर में मुझे कुछ ऐड करना है। अब बताओ मैं क्या ऐड करूं कि यहाँ पे नंबर डिविजिबल होता है 4 7 से, राइट? मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे +3 कर देती हूँ, +3, रिमाइंडर 7 नहीं है, आगे फर्दर डिवीजन हो जाएगी। So that means first number which is divisible by 7 is 203. अच्छा नेक्स्ट वाला कौन सा होगा? डिविजिबिलिटी बाय 7 है तो 210 and so on, राइट? अब 500 से कम देखना है मुझे, so I'll divide 500 by 7, right? The remainder is 3. अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि रिमाइंडर 0 आ जाए? -3. So that means last number is 497, right? मुझे बताने हैं नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं। ये डेफिनेटली एपी है, राइट? मुझे बेसिकली बताना है इस एपी में टर्म्स कितनी है। n टर्म्स, n की वैल्यू निकाल लो, n turns out to be 43. Alright, so question number 29. Write the sum of series, the entire one, up to 32 terms, right? अब clearly directly AP नहीं है, but एक बात बताओ, 5, 7, 9, 11 and so on. 5, 7, 9, 11 and so on, right? इसको कंसिडर करें -2, -4, -6, -8. -2, -4, -6, -8 and so on. कौन से बच्चे? -4, -2, 0, 2. So -4, -2, 0 and 2. So on, right? No, this is an AP. This is also an AP and this is also an AP, right? Basically यहाँ पे क्या हुआ है? First terms of each AP को add किया हुआ है. So basically corresponding terms of AP have been added. अगर 3 AP की corresponding terms add कर लूं, मुझे क्या मिलेगा? Arithmetic progression. तो 3 APs है ना, तो मैं ट्रिपलेट्स बना लेती हूँ। बना लिया, राइट? अब फर्स्ट से मुझे क्या मिल रहा है? -1. Then this is 1 and this is 3 and next is 5 and so on, right? अब एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे बोल रहे हैं up to 32 टर्म्स, राइट? मैंने तो ट्रिपलेट्स बनाया, एज इन 3 टर्म्स से मैंने 1 टर्म लिखी है, राइट? नाउ क्लियरली 32 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, राइट? तो एक काम करती हूँ, 30 टर्म्स तक कंप्लीट ट्रिपलेट्स बन गए होंगे,
to 30 terms, I would have complete triplets. और वो इनमें आगे होंगे, तो 30 टर्म्स में कितने ट्रिपलेट्स बने होंगे? हाँ 10, राइट। अब सम निकालना है इस एपी का अप टू 10 टर्म्स, इजिली निकाल सकते हैं, राइट। अब बच गए मेरे पास 31st टर्म एंड 32nd टर्म, ये निकालना, राइट। अब यहां तक तो 30 टर्म्स कवर अप हो गई, एज इन 10 ट्रिपलेट्स कवर अप हो गए, राइट। तो ये वाली जो टर्म्स होंगी वो कौन सी होंगी? 11th ट्रिपलेट वाली, कंप्लीट नहीं है बट ये 11th ट्रिपलेट वाली होगी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द ट्रिपलेट, फर्स्ट टर्म ऑफ द ट्रिपलेट कहां से आती है? हाँ यहाँ से, राइट। अब मुझे बताना है इस एपी की कौन सी टर्म होगी। अब एक बात बताओ, इससे पहले 10 ट्रिपलेट्स हो चुके हैं ना, दैट मीन्स 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी हैव बीन एग्जॉस्टेड। अब मैं 11 ट्रिपलेट के फर्स्ट टर्म की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स इस एपी की 11th टर्म की बात कर रही हूँ, राइट। इस एपी की 11th टर्म निकाल लेते हैं, होगी क्या? दैट इज 5 प्लस 10 into 2, so that is 25, मतलब 31st टर्म होगी 25, राइट। अब मुझे 32nd टर्म पता चल रहा है, माय प्रॉब्लम इज सॉल्व, राइट। दैट मीन्स ट्रिपलेट की सेकंड टर्म, अच्छा सेकंड टर्म आती कहाँ है? हाँ इस एपी से, राइट। अब इस एपी की कौन सी टर्म चाहिए? 2, 30 टर्म्स, 10 ट्रिपलेट्स हो गया, दैट मीन्स इस एपी की भी 10 टर्म्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स 11th टर्म ऑफ दिस एपी, राइट। वो भी निकाल लेते हैं, -2 प्लस 10 into -2, राइट। दिस टर्म -20, बेसिकली मुझे 32nd टर्म भी पता चल गया, तो ये वाला सम दिस टर्म्स आउट टू बी 80, इसको सम करोगे ये 80 आ जाएगा, प्लस 31st टर्म दैट इज 25 प्लस 32nd term that is -22. This turns out to be 83 and that's your answer. So question number 30, the most interesting question of the test. Now he says write the least value of the parameter a such that this and this are three consecutive terms of an AP where x is real. So these are three consecutive terms of an AP. That means C2 minus C1 as in a by 2 minus 5 raised to power 1 plus x plus 5 raised to power 1 minus x equal to C3 minus C2 equal to 25 raised to power x plus 25 raised to power minus x minus a by 2, right? अभी a by 2 यहाँ पे भी है, a by 2 वहाँ पे भी है, like terms combine, in fact this becomes a is equal to, अब इनको भी शिफ्ट कर रहे हैं, so I'll write it like this, 5 raised to power 1 plus x plus 5 raised to power 1 minus x plus 25 raised to power x plus 25 raised to power minus x, right? सबसे पहले ये है 5 raised to power 1 plus x, right? इसको ऐसे लिख लो, 5 raised to power 1 into 5 raised to power x, पावर्स ऐड कर रही हूँ मैं, राइट। अच्छा इसको ऐसे लिख लो, 5 raised to power 1 into 5 raised to power minus x, राइट। ये है 25 raised to power x, अब यहाँ पे 5 है, इसको भी लिख लो 25 raised 5 square, क्या 5 raised to power 2x लिख लो, राइट। अगेन ये बन गया 5 raised to power 2 इन raised to power minus x, इसको ऐसे लिख लेते हैं 5 raised to power minus 2x। अब आई होप यहां तक तुम सब पहुंच गए हो, राइट। अब इसके आगे क्या करें? अब द थिंग इज यहाँ पे 5 raised to power x, ये है 5 raised to power minus x, अच्छा 5 into 5 raised to power x plus 5 into 5 raised to power minus x, इसको ऐसे लिख लो 5 by 5 raised to power x, 5 raised to power minus x ऐसे लिखते हैं, राइट, प्लस 5 raised to power 2x plus 1 by 5 raised to power 2x, राइट। अब एक बात बताओ, यहाँ से 5 कॉमन ले लेती हूँ, ऐसे बन गया, राइट। अब ये तो भी सिंप्लीफिकेशन किया है, he says write
वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ए, इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है। लीस्ट वैल्यू आती कैसे है? हमने काफी क्वेश्चन कर रखे हैं लीस्ट वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं a is greater than equal to 7 and I ask you the least value of a, your answer will be 7। एक बार नंबर लाइन पे देख ले, अब a is greater than equal to 7, या तो 7 होगा या 7 से ग्रेटर होगा, राइट? मुझे चाहिए लीस्ट वैल्यू, कम से कम क्या हो सकता है? इट वुड बी 7। तो दैट मीन्स अगर मुझे लीस्ट वैल्यू निकालनी है, मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू वाली चीज लेके आनी पड़ेगी समहाउ, ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल टू लेके आना है। अब मैं अपनी टर्म को ऑब्जर्व करती हूँ, राइट? कुछ ऑब्जर्वेशन हो रही है, 5 रेज़ पावर x प्लस 1/5 रेज़ पावर x, ठीक है? ये और उसका रेसिप्रोकल, ऑलराइट। 5 रेज़ पावर 2x प्लस 1/5 रेज़ पावर 2x, this plus its reciprocal। यहाँ पे भी this plus its reciprocal। एक बार देख ले, अगर सपोज मेरे पास k है, उसके साथ क्या आ रहा है? 1/k, राइट? तो मुझे ये पता चल रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता किसके है, माय प्रॉब्लम इज डन। नहीं पता, k plus 1/k is greater than equal to, now I'll say this is greater than equal to 2। चेक करो, k को 2 रखो, 2 plus 1/2 डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट? अच्छा 3 चेक कर लो, 4 चेक कर लो, राइट? नाउ अब k को 1 भी पुट कर लो, 1 plus 1 दैट विल बी गिव यू 2, राइट? हाँ, तुम्हें ये तो पता चल गया होगा ना k एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अभी k इज पॉजिटिव बिकॉज 5 रेज़ पावर x को कुछ भी पुट करोगे ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगी, राइट? 5 रेज़ पावर -1 होता गया 1/5 पॉजिटिव क्वांटिटी। तो x को 399 पुट कर दो, वो तो बहुत बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो नेवरदलेस व्हाटएवर द पावर ऑफ x बी, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव एज वेल एज दिस एंड दिस। तो पॉजिटिव क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं अभी हम, राइट? तो अब तुम बोलोगे मैम आपने ये बोल तो दिया, बट हम क्यों माने इसको? प्रूफ कर देते हैं, हाउ हार्ड कैन इट बी? तो k plus 1/k, अब तो वहां पे है ना -2, इधर ले आते हैं, राइट? अब देखते हैं, ऑल हैव टू प्रूव दैट दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट? अब कैसे करें इसको? -2, अच्छा मैं k को ऐसे लिख लूं, √k होल स्क्वायर प्लस 1/√k होल स्क्वायर, राइट? इनफैक्ट इसको ऐसे लिख लेती हूँ मैं, 1/√k होल स्क्वायर, 1/√k होल स्क्वायर -2 इंटू, अब 2 इंटू 1 है ना, मैं ऐसे लिख लेती हूँ √k इंटू 1/√k। क्यों ऐसे क्यों लिखा? ओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो स्क्वायर है, दैट मीन्स ये √k minus 1/√k का होल स्क्वायर है। दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट दिस। एक बात बता, मुझे प्रूव करना था दैट दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? तो अभी कंक्लूजन क्या हुआ? दैट इफ आई ऐड अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, it will always be greater than equal to 2, right? अब ये लगा देते हैं, मेरे पास क्या है? सबसे पहले हम इसकी बात करें, 5 रेज़ पावर 2x प्लस 1/5 रेज़ पावर 2x, राइट? k प्लस 1/k डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट? अब यहाँ पे है 5 रेज़ पावर x प्लस 1/5 रेज़ पावर x, डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ, बट यहाँ पे 5 इंटू है, मल्टीप्लाई किया हुआ है 5 से, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगी, दिस बिकम्स 10, राइट? अच्छा मुझे a लेके आना है, दैट मीन्स इन दो क्वांटिटीज को ऐड करना है। ये पॉजिटिव इक्वालिटीज हैं, ऐड कर दो,
राइट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 10, so that is 12. आ तो गया मेरे पास, a ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ गया. अब मुझे लीस्ट वैल्यू ऑफ a बताओ, लीस्ट वैल्यू that will be 12 and that's your answer. All right, so that's the entire discussion of test 13. देख लो कि कहाँ पे टाइम सेव करना होता है और कितने स्टेप्स लिखने होते हैं. अब ये मत लिखते बैठ जाना Tn इज इक्वल टू दिस, डायरेक्टली लिखो a + n - 1 × d विद वैल्यू, a की वैल्यू पुट कर दो, उसे लिखने की क्या जरूरत है. ऑब्जेक्टिव पेपर है, सेव योर टाइम. आई थिंक पेपर वाज नॉट लेंदी एट ऑल, जैसे तुम लोग बोल रहे हो, लेंदी तो बिल्कुल नहीं था. हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन में टाइम लग सकता था, एग्री, बट टफ क्वेश्चन के लिए टाइम बचा के तो रखो, तभी तो अटेम्प्ट करोगे. All right, so that is it for today's discussion. Thank you.